समाप्त हो गया है। Hallelujah. And I woke up from that dream. I woke up from that dream. और मैं अपने सपने से बाहर आ गया, चला गया। And I cried like a baby for 1 hour continuously without stopping. और एक छोटे बच्चे के समान मैं रोना शुरू कर दिया 1 घंटे तक। For 1 hour. 1 घंटे You तक। should know I was this crooked man, no feelings, nothing. But this love that I received is not ordinary love. तुम समझ सकते हो कि मैं किस तरह का व्यक्ति था। मुझ में कोई डर नहीं था, लेकिन वो जो समय था, उसका प्यार जो मेरे में आ गया था, वो मुझे उसमें मैं बहने लगा। I cried like a baby. मैं रोता गया। The reason why I cried is because Jesus accepted me. जो कारण था मेरा रोने का वो ये था कि यीशु ने मुझे अपना लिया था। Come on, people in His world, when people in His world, they always put rules and they always put regulations. They always say, you have to be like this, you have to be like that, you have to dress up like this, you have to have this type of degree, you have to have that much of finances in your account in order for me to love you. संसार के जो लोग हैं वो तुमसे मोहब्बत करने के लिए तुम्हें एक नियम बताते हैं कि तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा रहना चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई इतनी रहना चाहिए, तुम्हारा कपड़ा पहनावा ऐसा रहना चाहिए, ताकि वो तुमसे प्यार कर सके। Full of rules and full of regulations. पूर्ण रीति से नियम के अनुसार ही होता है। And I was, the love that I received was not ordinary love. जो प्यार मैंने पाया था, जो प्यार मैंने स्वीकार किया था, वो कोई मामूली प्यार नहीं था। I am accepted in Christ. मैं मसीह में उसे स्वीकार कर He लिया था। accepted me regardless of my sinful past. उसने मेरे पापमय जिंदगी से मुझे बचाकर अपना लिया था। Hallelujah. Hallelujah. Number 2, I was doing it hypocritically. I was reading the Bible. I was praying to get close to a girl. और ऐसा होने लगा कि मैं इतना पागलपंती में हो गया कि मैं बाइबल पढ़ने लग गया और प्रार्थना करने लग गया। Only to impress that girl. Only to get closer to that girl. सिर्फ उसे भाने के लिए, सिर्फ उसे पसंद करने के लिए। Even though he knew the intent of my heart, he still loved me. ये सब जानते हुए भी कि मेरे हृदय में क्या चालू है, फिर भी वो मुझसे प्यार करता गया। Yes, and number 3, the reason why I cried is because that day I received this love from Jesus that fell on my heart, that broke my heart into pieces. तीसरा कारण मैं रोने का ये है कि जो प्यार मैंने पाया था, वो प्यार ने मेरे दिल को जो है वो तोड़ दिया था। And God took this selfish, sinful heart and put a heart of flesh. पापमय और थका हुआ ये दिल को लेकर परमेश्वर ने तोड़कर वो उसके प्यार के दिल को मेरे अंदर रख And दिया। that day I made a commitment with God. और उस दिन मैंने परमेश्वर के साथ एक वाचा I बांधी। said, God, I'm not going to read this Bible just to get close to a girl, but I really want to read this word to get closer to you. मैं उस दिन निर्णय किया कि परमेश्वर, ये मैं पवित्र शास्त्र इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि उसको मैं चाहूं, मैं इसीलिए पढ़ूंगा मैं तेरे करीब आ सकूं। I want to read this so I can know the depth of your love. मैं ये पवित्र शास्त्र इसलिए पढ़ूंगा कि मैं तेरे प्यार की गहराई को समझ सकूं। And I said, God, I made another commitment. I said, God, I'm not going to do the ministry like these other ministers are doing. और मैं परमेश्वर से एक वाचा बांधने वाला था कि परमेश्वर, मैं ऐसा सेवकाई नहीं करूंगा जो दूसरे लोग करते हैं। Because I don't want to do ministry for money. I don't want to do ministry for fame. और मैं सेवकाई पैसों के लिए नहीं करूंगा, मैं सेवकाई अपने नाम के लिए नहीं करूंगा। Because there are so many ways to make money and there are so many ways to become famous. But I didn't want to use ministry as an excuse to make money or to become famous. इसके अलावा कई सारे रास्ते हैं जहां पर मैं अपना नाम बना सकता हूं, जहां पे मैं पैसा कमा सकता हूं, लेकिन मैं सेवकाई को अपने नाम और अपने पैसों का जरिया नहीं बनाना चाहता हूं। I never want you to remember my name. और मैं कभी भी मेरा नाम इन चीजों में याद नहीं करना चाहता। Because I am not the way to heaven. Jesus Christ is the way to heaven. क्योंकि मैं स्वर्ग का रास्ता नहीं हूं, परमेश्वर स्वर्ग का, यीशु मसीह स्वर्ग का रास्ता है। Hallelujah. हालेलुया। Don't rely on me to take you to heaven. It's only Christ. It's only Jesus. ये कभी मत सोचो कि मैं स्वर्ग में लेके जा सकता, लेकिन नहीं, ये सिर्फ यीशु है, यीशु मसीह है जो तुम्हें स्वर्ग पे लेके जाएगा। Hallelujah. हालेलुया।
Hallelujah. हालेलुया। And that day I made that commitment, and for 1 year, God took me on a journey that I cannot imagine. और उस दिन जब मैंने परमेश्वर से वो वादा किया तो परमेश्वर ने एक ऐसे सफर में मुझे लेके जाना शुरू कर दिया जो मैंने कभी कल्पना नहीं की When I थी। got saved, when I went to church, see, this time going to church was very different for me. I went to church with excitement. I went to church with full of zeal to hear, to meet my brothers, to meet my sisters. देखो इस समय जो चर्च में मेरा जाना था वो बहुत ही अलग था, एक बहुत ही उत्साहित का बात था, एक ऐसा चीज था कि मैं अपने भाइयों को अपने बहनों से जाके उत्साह के साथ में मिलूं कलीसिया See, में you जाके। have to know that when I got up from that sleep, I was a new creation. कि तुम्हें ये जानना जरूरी है कि मैं जब वो बिस्तर से जब मैं सुबह उठा तो मेरा जो वो जागना था वो नयापन था। After that dream, I was created into a new creation. मैं उस सपने के बाद एक नया सृष्टि बन चुका था। You know, because my old me, the old Joseph was buried with Christ. But just like Christ resurrected on the third day, I resurrected with him as a new creation. मैं जैसा पुराना जो शब्द था वो यीशु मसीह के साथ मर चुका था, वो जो नया जोसेफ था उसके पुनरुत्थान में जिलाया I गया was था like a brand new baby. और मैं एक बच्चे के समान मैं जन्म ले I didn't लिया know था। anything. मैं कुछ भी कर सकता था, I know I didn't know anything. मुझे कुछ भी नहीं पता था। And I went to church with that innocence. और उस समय के मैं कलीसिया में गया And when I came home after church, I was full of grief in my heart. और जब मैं कलीसिया से जब घर पे आया परमेश्वर के पूर्ण रीति से अंदर रखकर, You know, I was full of grief and I was hurt and I was full of sorrow in my heart. बहुत ही दुख और बहुत ही तकलीफों के साथ मैं इसे महसूस करने लग गया। Because the church that I see that was in the book of Acts is not the church that I see right now. और मैं वो ये कलीसिया को जैसा देखा था जो अपुस्तल की किताब में, जो प्रेरितों के किताब में लिखा, वो उस तरह से नहीं था। Church that was in the Acts that were filled with the Holy Spirit. वो चर्च जो था पवित्र आत्मा से भरपूरी का था। And when I went to my church and when I saw the thing that was going around, this one is talking about that one, this one is talking about that one, so and so person has got a problem with this one, and all this mess, all this public market was going in the body of Christ. मैं जब कलीसिया में गया तो मैं ऐसा देखा कि ये इसके बारे में बात कर रहा है, ये इसके बारे में बात कर रहा है, तो मैं पूर्ण रीति से ऐसा देखने लगा कि ये कलीसिया में ये सब क्या हो रहा है। And I came home and I was saying, God, is this really who you called? Is this how we're supposed to live? क्या मैं बहुत ही दुख मन से मैं बाहर आकर मैं प्रार्थना कर लिया, परमेश्वर ये सचमुच ये परमेश्वर तूने चुना हुए लोग हैं जो ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। And I said, God, are these really Christians? मैं परमेश्वर से पूछा क्या परमेश्वर ये सचमुच के मसीह है क्या? And God spoke to me. और परमेश्वर ने मुझसे बातें And he की। said, Joseph, the problem is not outside the church. The problem is inside the church. और परमेश्वर ने मुझसे बातें की कि जोसेफ समस्या जो है कलीसिया के बाहर नहीं है, समस्या जो है कलीसिया में ही है। See, I'm bold enough to reveal this to you. मैं इसको बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ Because only the truth can set you free. क्योंकि सच्चाई तुम्हें आजाद कर सकती है। We need to stand up to our calling. और हमें अपनी बुलाहट पर खड़ा होना जरूरी है। You know, God spoke to me that day. और उस दिन परमेश्वर ने मुझसे बातें की, The problem is inside. कहा कि जो समस्या है वो अंदर है। The problem is not outside what we wear. The problem is in our heart. वो हम जो पहन रहे हैं बाहर रूपी से उसमें समस्या नहीं है, समस्या जो है वो अंदर रूप में है। God doesn't care what you wear. God doesn't care how presentable you are. The Bible says that God does not look at the outer appearance, but God looks at the inner appearance. तुम्हें ये कोई तुम क्या पहनते हो, तुम्हारा पहनावा क्या है, तुम कैसे दिखते हो, ये चीजों से कोई मायने नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर अंदरूनी भाग को परमेश्वर देखता है। When I entered into ministry, so many people persecuted me. They were saying, "Man, you're just too young, man. You're so young. What can you do?" जब मैं सेवकाई में उतरा तो कई लोगों ने मेरा तिरस्कार किया, बोला अरे तू तो बहुत जवान है यार, तू बहुत छोटा सा है, तू क्या करेगा, तू कैसे सेवकाई You have करेगा, no experience. तुझे कोई अनुभव नहीं है, You have no knowledge. तेरे पास कोई भी ध्यान नहीं है। You know what I said to them? और मैंने उनसे कहा, I said, yes, I might be only 20 years old,
हाँ, मैं तो 20 साल का ही हूँ, but the spirit that lives inside me is not 20 years old. लेकिन जो आत्मा मेरे अंदर निवास करती है वो 20 साल की नहीं है। The spirit that lived inside me is the same spirit that impregnated Mary. The same spirit that lives inside me raised Jesus from the dead. ये वो आत्मा है जो मरियम को जो शब्द भेजी, और वो ये आत्मा है जो यीशु मसीह को मुर्दे में से जिंदा किया। Hallelujah. And they हालेलुया। said, man, you don't have no knowledge. You know, I think you should go to a theological school. I think you should go to a Bible school. और उन्होंने कहा कि तुम्हें थियोलॉजिकल पढ़ाई में जाना चाहिए, तुम्हें बाइबल की स्कूल में जाना चाहिए, You should go to Bible school. तुम्हें पवित्र शास्त्र के स्कूल में जाना And चाहिए। I said, I didn't go to Bible school, but I just went to the Bible. मैं बाइबल के पाठशाला में नहीं गया, लेकिन मैं बाइबल को लेके And गया। they say, you need experience, man. You're gonna face a lot of things in ministry. और उन्होंने कहा अरे तुम्हें बहुत कुछ सहना है, अभी बहुत सारी समस्याओं को भी सहना पड़ेगा। I said, I don't need experience to know my Father. और मैंने कहा कि मुझे अनुभव की जरूरत नहीं है पिता को जानने के लिए, Because Christianity is just knowing the Father's will. लेकिन मसीहता ये पिता की आज्ञा, पिता के प्लानिंग को जानने का है। Hallelujah. हालेलुया। And they said so many things that I thank God for His presence. And I thank God for His Holy Spirit that comforted me, or else I would have left this ministry ages ago. और मैं परमेश्वर की आत्मा को धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे पकड़े रखा और मैं इसमें चलता गया, नहीं तो कुछ साल पहले मैं इसे छोड़ने वाला था। When a person said one thing to me, God was telling me 100 things to comfort me. और अगर एक व्यक्ति मुझसे कुछ कहता था तो परमेश्वर की आत्मा मुझे हमेशा सहारा देती थी। It's just a lot of things that happen, and God took me through fire for 1 year, and in that fire, God taught me what a man would learn in 20 years. I've learned it in 1 year. और परमेश्वर ने मुझे 1 साल में वो सारी चीजें उसकी अग्नि से मुझे सिखा दिया कि 20 साल में क्या होता है। Many people said, man, I've been a Christian for 20 years. I've been a church elder for so and so years. And I said to them, listen, you know what? In God, in Christianity, it's not about seniority, it's about sincerity with God. और वो लेकिन मसीह लोगों में इस तरह से होता है कि मसीहत्व में ऐसा होता है कि तुम अपने बड़ेपन को नहीं, लेकिन परमेश्वर की गहराई में किस तरह से बहते हो वो देखना बहुत जरूरी है। It's not about seniority, it's about sincerity with God. तुम कितने भले हो परमेश्वर में वो दिखना बहुत जरूरी है। God doesn't care how many years you've been in church. God doesn't care if you've been a Christian for whole your life. परमेश्वर ये नहीं देखता है कि तुम कितने सालों से कलीसिया आते हो, परमेश्वर यही नहीं देखता है कि तुम कितने सालों से मसीह हो। It's about how much of Jesus is in you. लेकिन ये बात ऐसा होता है कि कितने दिनों से परमेश्वर तुम्हारे अंदर है। Do you examine yourself every single day? Am I living like Jesus? Am I walking like Jesus? Am I hearing like Jesus? Am I seeing like Jesus? Am I really living the life that is pleasing to God? तुम अपने दिन ब दिन की जिंदगी में ये तुम्हें परखना बहुत जरूरी है। क्या मैं यीशु की तरह देखता हूँ? क्या मैं यीशु की तरह बोलता हूँ? क्या मैं यीशु की तरह चलता हूँ? दिन ब दिन क्या मैं यीशु जैसा जीता था? क्या मैं वैसा जी रहा हूँ जो परमेश्वर यीशु को प्रसन्न करता है, वैसा मैं जी रहा हूँ क्या? The mistake that I've done was looking at Christians to define my God. That was the mistake I have done. मैं जो गलतियां किया था उसको ही लोगों परमेश्वर के जन को बांटने में मैंने गलती कर दी। I thought that I would find Jesus in Christians. और मैंने ऐसा सोचा कि यीशु मसीह लोगों के लिए काफी है। Because the Bible says we are the temple of the Holy Spirit. So I was trying to find a bit of Jesus from here and there in churches. तो जैसा पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तो मैंने हर लोगों में ये देखना शुरू कर दिया। And I didn't find any Jesus in the church. और मैंने कलीसिया में कहीं भी यीशु को नहीं देखा। My friends, it's very important to live the life like Jesus. और मेरे दोस्तों, परमेश्वर यीशु के जैसा जिंदगी जीना बहुत Because the जरूरी है। world is dying out there. क्योंकि ये जो दुनिया में लोग हैं वो वहाँ पे मर रहे हैं। There's so many heathens, there's so many unbelievers in this world. कई सारे अन्य जाति के लोग, कई सारे लोग जो है संसार में जी रहे हैं। And they're dying without Jesus. That means they're dying and going to hell. अगर वो यीशु के बिना अगर मर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो यीशु के बिना
नरक में जा रहे हैं। You know, you work in your workplace. Who knows, a person next to you needs Jesus. Who knows, a person behind you needs Jesus. Who knows, the same bus that you've been taking, there might be a person next to you that does not know Jesus and who would like to know Jesus. ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे बाजू में जो खड़ा है उसे यीशु की जरूरत है, तुम्हारे दफ्तरों में तुम्हारे कलीग को यीशु की जरूरत हो सकती है, जो तुम्हारे साथ में रोज उठते बैठते हैं उनको यीशु की जरूरत हो सकती And है। so many people like to give, message and say, Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you. But what about you loving them like Christ loved them? तो कई सारे लोग ऐसा सुसमाचार देते हैं, यीशु तुमसे प्यार करता है, यीशु तुमसे प्यार करता है, यीशु तुमसे प्यार करता है। तो ये सोचना बहुत जरूरी है, क्या जैसा यीशु प्यार किया वैसा तुम प्यार करते हो? Do you love your neighbors as you love yourself? क्या तुम अपने पड़ोसी से वैसा प्यार करते हो जैसा तुम अपने आप से करते हो? See, the world out there is not looking for a new definition of Christianity. The world out there is looking for a new demonstration of Christianity. जो पार के संसार के लोग हैं वो नई मसीह को देखने में उत्तेजित नहीं रखते, वो इस चीज में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं किस तरह से मसीह लोग अपने आप को दिखा रहे हैं। You might give a new revelation on how Christianity is, but they're not looking for a new definition. They're looking for a demonstration of Christianity. ये ऐसा नहीं कि मसीह लोग किस तरह से नएपन को अपने आप से दोहराते, लेकिन जो परमेश्वर किस तरह से अपनी जिंदगी को मसीहत्व में तुम दिखाते हो ये जरूर है। When I got saved, when I looked at the church, I was grieved in my heart. जब मैं बच गया, जब मैं कलीसिया को देखा तो मैं अपने अंदर उदास हो गया था। Because in Ephesians chapter 5 verse 1 says, be imitators of God. क्योंकि इफिसियों के पहले 5वें अध्याय में इस तरह से कहता है कि परमेश्वर के खोजी बने रहो। Put your hand on your heart and examine yourself and ask yourself this question: am I really imitating Jesus Christ? अपने हाथों को अपने हृदय पर रख कर क्या कहो कि मैं सचमुच यीशु को भाने वाली जिंदगी को जी रहा हूँ क्या? Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I'm going to share this small story and I'm going to conclude my message. और मैं एक छोटी सी कहानी को बताकर मैं यहाँ पर समाप्त कर दूंगा। One day I was going to my Benjamin. He was in London. I was going to Benjamin's house. मैं एक दिन लंदन में जो ब्रदर बेंजामिन थे उनको देखा और उनके घर पे चला It's a गया। long travel from West London to Southeast London, right? तो ये बहुत लंबा सफर है। You know, and I was going, and on the way there, I got off the station. I came away from the tube station, the train station, and I saw a man, and the Holy Spirit said, go and speak to that man. और जब मैं वहां से जा रहा था इस जगह से उस जगह पर, तो मैंने एक व्यक्ति को देखा, तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जा और वो व्यक्ति से बातें कर। And you know, this man was a very ferocious looking man. He was a big African man. He was about 6'6", and he had this hefty body. और ये जो ये व्यक्ति था वो बहुत ही अट्टा कट्टा था और एक उसका जो हाइट था 6 से 6 तक था और इस तरह से बहुत ही खतरनाक दिखने वाला He व्यक्ति had था। chains, he had rings, you looked like a proper gangster. He had a hoodie on as well. और उसके बालों में थे और उसकी उंगली में जो अंगूठियां थी, जो चेन्स थी, वो इस तरह से दर्शा रही थी कि वो कोई गैंग का जो मेंबर था। And he was standing alone and was smoking weed. वो अकेला खड़ा था और सिगरेट को पी रहा था। And I was saying, God, are you really sure you want me to go to him? तो मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर क्या सचमुच चाहता है कि तुम्हें उससे जाके बातें करूं? He said, go. उसने कहा जा। And I went to him और मैं उसके पास गया with full of love and compassion. और पूर्ण परमेश्वर का दया और प्यार लेकर मैं गया। I said, hey man, listen, I'm sorry to bother you, but I just want to say that Jesus Christ loves you, man. और मैंने उससे इस तरह से कहा कि यीशु तुझसे प्यार करता है। He loves you so much. And I started to share my testimony. I started to share the love of Jesus Christ. और मैंने उससे कहा कि यीशु तुझसे प्यार करता है और मैं अपनी गवाही को बताना शुरू कर दिया। And he said, I don't care. कहा मुझे कोई परवाह नहीं है। He said, I don't care. मुझे परवाह ही नहीं है। And I was still pressing. I said, man, he loves you, man. He wants to change your life. He changed my life 2 years ago. He changed my life a year ago. And he's ready to change your life. और मैं उसे फिर से बताता गया कि नहीं यार ऐसा नहीं है, परमेश्वर तुझे बदलना चाहता है, परमेश्वर तुझसे प्यार करता है, जैसे उसने मुझे बदला, मुझसे प्यार किया, वैसे तुझसे भी करना चाहता है। And you know what he has done? He took a deep breath in a cigar or some weed and he blew it in my face and he spat in front of me, trying to aim my shoe, but he missed my shoe and he spat on the floor.
और वो जो सिगरेट जो वो पी रहा था वो जोर से अंदर लिया और वो मेरे जूते पे फेंकना चाहता था, लेकिन वो मेरे बाजू में आकर He गिरा blew the smoke on my face और वो first, जो धुआं था वो मेरे चेहरे पे उसने छोड़ा and he spat, saliva near my shoes. He was aiming for the shoe, but he missed the shoe. और उसका जो अंदाजा था वो जूते पे फेंकने का था, लेकिन वो जूते इसके बाजू में आके गिरा And he pushed me. He just not really hard, but he just slightly pushed me. और ऐसा एकदम धक्का नहीं, जरा सा ऐसा मेरे को धकेल दिया उसने And he got a bit aggressive. He said, "If you do not leave, I will do something to you that you will not like." उसने ऐसा कहा मुझसे कि अगर तू यहाँ से नहीं गया तो मैं ऐसा कुछ करूँगा जो तुझे पसंद नहीं है And he threatened me. और उसने मुझे डर दिया And I said to him, "Listen, even though you kill me, every breath in my lung will cry out to you that Jesus loves you." अगर तू मुझे मार भी डालेगा तो भी मेरी अंदर की हर एक सांसें चिल्लाकर कहेगी कि यीशु तुझसे Because प्यार I करता know है what I'm talking about. Because I know this Jesus. Because I experienced him. क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने यीशु के प्यार को अनुभव किया है And he said, "Man," and because I don't like to force people, but I said, "Listen, man, I'm going to leave you with this." I said, "Jesus loves you, and I also love you, my brother." और मैंने कहा कि सुन, इसे फेंक दे, इसे छोड़ दे, यीशु तुझसे प्यार करता है और मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ And I left that place and I went to Benjamin's. और मैं वहाँ से चला गया और इनके घर पर चला After गया 3 days, I had to go back to that area again. और 3 दिन के बाद ऐसा हो कि मुझे फिर से वो स्थान में जाने का था And there I saw the same guy was holding a Bible in his hand and preaching the gospel of Jesus Christ. और उसी व्यक्ति को मैंने देखा अपने हाथ में पवित्र शास्त्र पकड़े हुए लोगों के बीच में Hallelujah! प्रचार करते हुए हालेलुया His name was Michael. उसका नाम माइकल है I was thinking to myself, am I going crazy? Is that really Michael? मैं अपने आप में एक पागल जैसा महसूस करने लगा कि ये क्या सचमुच ये वही व्यक्ति है And I ran towards him. I said, "Michael, is that you?" और मैं अपने आप को रोक नहीं सका और भागते हुए उसके पास चला गया और कहा माइकल क्या तू वही है This time he had a different approach to me. और इस समय जो था कुछ अलग ही बढ़ता And he हुआ said, "Man, is this really you? What are you doing?" और मैं इस तरह से बात करने लग गया कि यार तू वही है और ये सब क्या कर रहा है तू And he took me to a side. और मुझे एक जगह पर उसने लेके गया And he said, when you left, there was a great conviction in my heart. जब तू चला गया तो मेरे अंदर एक बड़ा पश्चाताप आने लगा And that day I left with conviction in my heart and I slept. And that day Jesus came into my dreams. और बड़े पश्चाताप के साथ जब मैं वहां से गुजरा, जब मैं रात को सोया तो यीशु मसीह मेरे सपने में आए Jesus came into my dream. यीशु मसीह मेरे सपने And में he आए spoke to me. He said, "I have sent my son to you and you have persecuted me." मैंने अपने बच्चे को तेरे पास भेजा था और तूने मेरा तिरस्कार किया You spoke, you blew smoke on his face and you spat at him. और तूने उसके ऊपर अपना धुआं छोड़ा और तू वो जो था उसे अपने उसके बाजू I में फेंक sent दिया him to you. और मैंने तेरे लिए भेजा था And he said, "Michael, my son, I love you." उसने कहा, यीशु ने कहा कि माइकल मेरे प्रिय पुत्र मैं तुझसे प्यार करता हूँ Michael, you were supposed to die. माइकल तू मरने वाला था Michael, people were about to kill you. माइकल लोग तुझे मारने वाले थे But I took those stabs for you. लेकिन तेरा घोड़ा मैंने खाया है Can you come and live for me? क्या आकर तू मेरे साथ जी सकता है And then he woke up from that dream and every demon in Michael left him. और जब वो सुबह उठा उसके अंदर से हर दुष्ट आत्मा उसके अंदर से चली गई And he shared this experience with me. और उसने अपना अनुभव मेरे साथ बांटा And he said something to me, "Joseph, when you left, so many men of God came to me and told me the very thing that you said." उसने मुझसे ऐसा कहा जोसेफ जो तूने मुझसे कहा था
कई सारे परमेश्वर के जन और दास आकर ये पहला मुझसे कह के So many गए थे। evangelists came to me, कई सारे सुसमाचार आकर मुझसे ये बात कहकर but I've गए। treated them the same way I've treated you, by blowing smoke in their face and spitting at them. और उसी तरह से मैंने बर्ताव किया जैसे मैंने तेरे साथ बर्ताव किया। मैंने उसके ऊपर धुआं थोका और उसके बाजू में थूक And दिया। when they left me, they condemned me and they said, God will punish you. Don't you know that I'm a man of God? Don't you know I'm so and so? How could you do this to a man of God? They persecuted me when I've done these things. और उन्होंने मेरे विरुद्ध में बात करना शुरू कर दी और उन्होंने मुझे घूसा और उन्हें मुझे कहा कि मैं पवित्र, मैं परमेश्वर का जन हूँ, तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? But Joseph, you said that Jesus loves you, and you said, I love you as well. लेकिन तूने कहा जोसेफ कि परमेश्वर तुझसे प्यार करता है और मैं भी तुझसे प्यार करता I हूँ। said, and I start to think, how could this man, I have done this much to him, how could he still tell me that he loves me? पर मैंने ये ऐसा कैसा होता है कि ऐसा सब होने के बाद भी ये मनुष्य मुझसे प्यार कर सकता है? How could you love me? ये कैसा हो सकता है? कैसा मुझसे प्यार कर सकता You're है? supposed to hate me, but how could you love me? ये सब को ऐसा हो सकता है, लेकिन तू कैसा मुझसे प्यार कर सकता है? I said, Michael, it's Jesus, man. Greater is he who is in me than he that is in the world. वो जो जोसेफ ये ऐसा है कि परमेश्वर जो मुझसे बहुत प्यार करता है वो मेरे अंदर है, वो संसार में Right now, है। Michael is a radical, bold street evangelist. और जो माइकल है यहाँ पर वो रास्ते में जाकर बहुत ही स्पष्ट रूपी से, बहुत ही बिना डरे प्रचार He करता है। left his gangs, he left drugs, he left crime, he left everything. वो अपने गैंग को छोड़ दिया, सारे ड्रग्स को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर। What did I do? What did I do? मैंने क्या किया? I did not give him a new definition of Christianity. I showed him the demonstration of living a Christian life through me. मैंने उसे मसीह को नहीं बताया, मैंने मसीह को अपने अंदर से उसे दिखाया। My friends, wake up. जाग जाओ, Wake up. जाग जाओ। Are you really living the life that you're supposed to live? क्या वही जिंदगी है जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली जी रहे तुम? Hallelujah. हालेलुया। Let's make a covenant today. Let's make a commitment today. आया हम एक वाचा को बांधे, आया हम एक वादा परमेश्वर से करें, Because one day क्योंकि एक दिन you will be in front of the Father. तुम्हें पिता के सामने जाना है। One day एक दिन will come आएगा that Jesus will judge you. यीशु तुम्हारा न्याय करेगा। And can you face the judgments? क्या तुम उस न्याय को सामना कर पाओगे? If you love Jesus, अगर तुम यीशु से प्यार करते हो then you will surrender your life to Him. तो आज तुम अपनी जिंदगी को परमेश्वर को समर्पण करो। Flow. Deep. More. अगर आपने अपने शरीर में देखिए कुछ बार-बार if you have felt the Holy Spirit walking in you today, if you felt that your life has changed, don't be ungrateful and leave out of this place. Be thankful to God. प्रभु कधी-कधी आणि मी खरंच देवाला धन्यवाद देतो की जसं ब्रदरांनी त्याची साक्ष दिली आणि त्यामुळे जीवन म्हणजे पवित्र होत चालले, पवित्रपणे येत चालले. असे वेगवेगळे विचार आता नाहीये. He said त्यामुळे that as he was in the Lord, but he had lust and all these different kinds of things. As he heard your testimony today, it's completely set free. इनका लेफ्ट साइड का खल्ला और राइट साइड की नीज वो दिन से पेन कर रही थी, मगर जैसे वचन चालू हो गया प्रभु का, वैसे प्रभु ने उनको हील किया। आजाद हो गए अभी? आजाद हो गई मैं। अभी तक नहीं लग रहा आपको? नहीं। बिल्कुल आजाद महसूस कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। कौन ठीक करता है यहाँ पे? कौन आजाद करता है?
कौन ठीक किया आपको? यीशु। Amen. आपको पसंद? पास्टर ने भाई की गवाही ऐसी, जब पास्टर प्रीचिंग कर रहे थे, जब बोल रहे थे कि कोई तो एक ऐसा भाई है जिसको रात भर नींद नहीं आती है उलझनों में, तो ये भाई ये था। और जब पास्टर ने प्रे की तब उनको कंफर्मेशन मिला, इसके लिए वो प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। Amen. The word of wisdom that you gave applies to him. Yes, very good. Yes. पास्टर इस भाई की गवाही ऐसी कि इसके मन में एक हफ्ते से डिप्रेशन था, एक हफ्ते से। मगर आज वचन के द्वारा पूरा डिप्रेशन निकल गया, फ्रेश हो गया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। पास्टर ये भाई की गवाही ऐसी कि इसके मन में बुरे बुरे विचार आने के, मगर जब पास्टर ने अपना वचन शेयर किया तो उससे वो हील हो गया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या क्या गारंटी आपकी होगी? क्या गारंटी है पूरे विचार आएंगे? मेरा अभी जो अंदर से वो भी हुए नहीं, अभी सा अच्छा लग रहा है, वो पूरा खाली हो गया, सब कुछ निकला करके। नहीं, बट आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। मतलब आज तक मतलब इतना मैंने हंसी गई हूँ, जितना मतलब स्टार्टिंग में रोई हूँ मैं, फिर बाद में मुझे बहुत खुशी महसूस